think You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. You're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, एक बहुत बड़ा विवाद हुआ है। अमेरिका के 200 सालों के इतिहास में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि कोई राष्ट्रपति आए अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने बैठ करके नोकझोंक करे, तू मैं करे। बहुत भयंकर माहौल बन गया था। कल जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, वो व्हाइट हाउस में गए थे। ओवल ऑफिस में उनके साथ मीटिंग हुई ट्रंप की, और ये मीटिंग इतनी ज्यादा हीटेड रही कि बहुत बुरी स्थिति आ गई है। मतलब समझो आप कि इन्होंने इन्हें स्टूपिड तक बोल दिया है, स्टूपिड प्रेसिडेंट तक बोल दिया। बहुत गलत शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि अंत आते आते मीडिया वालों को बाहर कर दिया गया। अब अंदर में इनको 2-4 थपेड़ भी लगाए होंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जेलेंस्की की मतलब भारी इज्जत लूटी गई यहाँ पर। खैर, डोनाल्ड ट्रंप और इनके बीच में जो कुछ बहस हुई, उनका कुछ हिस्सा हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, कुछ सुनते हैं, प्रयास करते हैं। I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not dictating. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. I'm not playing cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. Mr. President. You're playing I'm very cards. serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this even entire today, meeting, you said thank even you. Today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. पहले तो जेलेंस्की और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हो रही थी बात, फिर उसके बाद बीच में जेडी वेंस जो जब देखे कि हमारे प्रेसिडेंट की मतलब कि थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट हो रही है, तो इन्होंने बोलना शुरू किया। अब इनने बोलना शुरू किया तो फिर जेलेंस्की इनसे बहस करने लगे और उसके बाद फिर बीच में ट्रंप ने टोका और उसके बाद ट्रंप ने बहुत कुछ बोल दिया। इनको बोल दिया कि अभी तुम नेगोशिएशन के लायक नहीं हो, उस स्थिति में नहीं हो कि आओ यहाँ पर नेगोशिएशन करो। और दूसरी बात, यहाँ आकर के हमारे व्हाइट हाउस में आकर के हमारे ही ओवल ऑफिस में बैठ करके हम ही से तुम तू मैं कह रहे हो, और कुछ इतनी बड़ी स्थिति भी तुम्हारी नहीं है। बहुत कुछ सुनाया इन्होंने। खैर, ये सब मुद्दा कहाँ शुरू हुआ, इसके पीछे वजह थी जो रेयर अर्थ मिनरल की डील थी। वो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो दिया था, इसमें बताया था कि आखिरकार यूक्रेन मान ही गया है रेयर अर्थ मेटल को लेकर के। तो फोन पर तो मान गया था, फिर लेकिन जब जेलेंस्की को बुलाया गया यहाँ पर, तो अब देखो जेलेंस्की की भी दाद देनी पड़ेगी। भाई बहादुर आदमी तो है मतलब आप देखो कि व्हाइट हाउस में आ करके बंदा बातें पलट गया। यहाँ पर पहले तो फोन से कहे कि हाँ ठीक है चलो हम मान जाएंगे, डील कर लेंगे अमेरिका से। अमेरिका भी बहुत खुश था, चलो ठीक है हम तो वाहवाही लूटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहे हम तो वाहवाही लूटेंगे, रसिया यूक्रेन का अगर युद्ध बंद हो जाएगा तो बदले में फायदा भी लूट लेंगे, रेयर अर्थ मेटल भी मिल जाएगा वहां से। लेकिन जेलेंस्की यहाँ पर खेला कर गए।
ये क्या किए, ये जब आए तो आप देखोगे ना, तो जब भी मीटिंग होती है दो प्रेसिडेंट के बीच में, तो ये तो सामने हम लोग को दिखता है केवल 2 लोग बैठे हैं, लेकिन पूरा रूम जो है वो पूरा मीडिया कर्मियों से भरा रहता है। मीडिया कर्मी होते हैं, इसके बाद फिर एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है, सांसद वगैरह भी होते हैं उनके कांग्रेस के। खैर, तो ऐसे ही ये भी रूम भी पूरा भरा हुआ था। अभी मैं दिखाऊंगा कुछ फुटेजेस जिससे आपको अंदाजा लगेगा कितने लोग होते हैं सामने। तो अब आकर के यहाँ पर जेलेंस्की बदल गए। जेलेंस्की यहाँ पर मुद्दा उठा दिए दूसरा। ये अब मुद्दा उठाने लगे कि अमेरिका फायदा देख रहा है, पुतिन को ये मर्डरर तक बोल दिए। अब ये सब बोलने लगे जब, तो फिर ट्रम्प तो खफा हो गए। ट्रम्प का ये कहना था कि तुम पुतिन को ऐसा बोल रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि हम भी ऐसा बोलें, पुतिन को गाली दें और उसके बाद फिर नेगोशिएशन उनसे करें और तुम समझौता कर लो सीज फायर का। तो ऐसा तो पुतिन करेंगे नहीं, आप भी जानते हो अच्छे तरीके से। सही बात है भाई, एक तरफ तुम आकर के कहोगे कि तुम उनको गाली दो, उसके बाद फिर ये कहोगे कि नहीं हम शांति चाहते हैं, हम समझौता करो। कोई बंदा अगर गाली खाएगा वो भी पुतिन जैसा, तो वो कम थोड़ी ना है ट्रम्प से, तो वो आकर के दोबारा पीस एग्रीमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इन्होंने कहा अगर पीस शांति समझौता चाहते हो तो ये सब ना बोलो, और जो डील पर बात हुई थी रेयर अर्थ मिनरल्स पर, उन सब पर बात करते हैं और उसके बाद फिर पीस एग्रीमेंट पर समझौता करते हैं। इसमें ये भड़क गए, ये बोलने लगे इनसे। जेडी वेंस जब बीच में बोले तो जेडी वेंस से ये बोलने लगे कि तुम कभी आए हो यूक्रेन में, कभी आकर के देखे कि कैसे युद्ध चल रहा है? तो जेडी वेंस बोले कि नहीं, हम आए तो नहीं है, लेकिन हम रिपोर्ट्स पढ़े हैं, फुटेज देखे हैं, सब कुछ देखे हैं, तो मुझे वहां की स्थिति का पता है। इन्होंने कहा कुछ नहीं पता है, इसका अंजाम अमेरिका को भी देखने को पड़ेगा। इतने में ट्रम्प भड़क गए, कहे अमेरिका को क्या तुम भुगतोगे? अमेरिका जिस रास्ते पे जा रहा है वो जा ही रहा है। मतलब बहुत तगड़ी नोकझोंक हुई। लग ही नहीं रहा था कि 2 प्रेसिडेंट आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं जैसे 2 व्यक्ति आम गली में लड़ते हैं, उस हिसाब से हो रहा था तुम्हें में। आप ये कुछ फुटेजेस देखो, कुछ इस प्रकार से उंगली दिखावा हो रहा था। और यहाँ तक कि फिर लास्ट में आते आते 50 मिनट तक ये मीटिंग चली, लास्ट में आते आते मीडिया वालों को बाहर कर दिया गया। उसके बाद फिर अंदर में क्या कुछ हुआ पता नहीं। कुछ देर बाद ही तुरंत ये निकले और निकलते ही फिर अपने गाड़ी पर बैठे और निकल लिए अपने देश में। इतनी इस हिसाब से यहाँ पर ये हीटेड यहाँ कन्वर्सेशन रही दोनों के बीच में इन्होंने शुरुआती दौर में जब माहौल बन रहा था तब ये यूक्रेन युद्ध की फोटो वगैरह भी दिखा रहे थे, बहुत सारी चीजें बातचीत चल रही थी। ट्रम्प ने कहा कि आप कोई डील करने की स्थिति में नहीं हो, ये मत सोचने आओ यहाँ पर कि हम यहाँ पर आकर के अमेरिका से डील करेंगे या रसिया से अपनी डील मनवाएंगे तब करेंगे। ऐसी स्थिति में तुम नहीं हो, तुम अपने सैनिकों को बचा लो, यही बड़ी बात है। क्योंकि अब अमेरिका फंड तो देगा नहीं, अमेरिका ना हथियार देगा अब तुमको, क्योंकि बहुत सारा हम लोग ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। तो ना हथियार देंगे ना फंड देंगे, तो तुम वैसे ही खत्म हो जाओगे। तो अभी तुम डील करने के मकसद से हमारे पास ना आओ। You're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. कि हम अपनी ये शर्तें रखे हैं, हमारी शर्तों को माने रसिया तब हो। अभी तुम बहुत लोअर पोजीशन पर हो, तुम अपनी स्थिति बचा लो, अपने नागरिकों को बचा लो, यही बड़ी बात होगी। तुम तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हो। जब ये भड़क गए ट्रम्प, जब देखे कि ये बहुत इधर उधर की बात बोलने लगे, तो ट्रम्प बिल्कुल भड़क गए और उसके बाद ये कहे कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई दुनिया में बुरा इंसान होता होगा ना, तो उससे भी बुरा इंसान मैं हूँ, मुझे भी जानते नहीं हो। और उसके बाद ये भी कहे कि तुम World War III का जुआ खेल रहे हो। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. तुम यहाँ गैम्बलिंग कर रहे हो World War III के लिए। ये पूरा आप वीडियो देखोगे ना तो आपको सब समझ में आएगा। 5-7 मिनट की वीडियो है, उसमें बहुत ज्यादा हीटेड कन्वर्सेशन है। अच्छा, इसके बाद जब देखा गया कि क्योंकि भाई इंसल्ट तो होगी, वो अगला बंदा जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट है, दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति है, उनका प्रेसिडेंट है। अब कोई यूक्रेन का प्रेसिडेंट अगर जा करके उनके ही व्हाइट हाउस में जाकर इस प्रकार से अगर बात करेगा तो फिर उनको तो भाई मिर्ची लगेगी ही। आज के टाइम पर देखो, जहां पर अब दुनिया 2 धड़ों में बंटना शुरू हो गई है, जहां पर एक टाइप से मतलब जेलेंस्की की बहुत सराहना भी की जा रही है कि इन्होंने बहादुरी दिखाई। वाकई में बहादुरी तो दिखाई भाई, जा करके व्हाइट हाउस में इस हिसाब से बात किए, उंगली दिखा करके बात कर रहे थे, बिल्कुल सर पर कफन बांध करके निकले हुए हैं। ये जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी क्या बचा है। खैर, तो इनकी काफी वाहवाही भी हो रही है इनकी बहादुरी की। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका वाले जो हैं ट्विटर वगैरह पर अभी आज के दिन में देखोगे ना, तो इनकी खूब बुराई भी कर रहे हैं कि एक तो देश पूरा खत्म कर दिए, खा गए, उसके बाद इस हिसाब से तुम आकर के तानाशाही दिखा रहे हो। My second question for President Zelensky. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level
in this country's office and you refuse to wear a suit, just want to see if you do you own a suit? Yeah, you have problems. A lot of Americans have problems with you not respecting. I don't have such. Office. I will wear costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like yours. Yes. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Thank you. Thank you for. खैर यहाँ पर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन यूरोप में यहाँ पर इंटरेस्टिंग देखने को ये मिला कि जितने यूरोपीय देश है ना, यूरोपीय देश लगातार समर्थन कर रहे हैं और खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। बहुत सारा, मतलब अगर आप आज एक्स अकाउंट खोल करके जाकर जेलेंस्की सर्च करना और इनके अकाउंट पर जाकर के बस देखना आप कितने को ये थैंक यू फॉर योर सपोर्ट लिख करके भेजे हैं। लगातार भेज रहे हैं। यूरोप की बहुत सारे देश, डेनमार्क वगैरह से लेकर के सब खुला सपोर्ट कर रहे हैं। जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, मतलब यूरोप के छोटे से लेकर के बड़े देश तक, मालदोवा, एस्टोनिया, पोलैंड, मतलब सभी देश इनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं यूरोप के, और ये सबको यही थैंक यू फॉर योर सपोर्ट भी बोल रहे हैं। यानी पूरा का पूरा यूरोप जो है वो अमेरिका से खफा है, और खफा होने का कारण भी है ट्रंप कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहे हैं, और इसी को लेकर के ये हुआ। खैर, जो कल इंसिडेंट हुआ इसका परिणाम तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप ने अपना जो कमिटमेंट जारी किया, बाद में इन्होंने एक पोस्ट लिखा है द ट्रुथ पर, और इस पोस्ट को ध्यान से पढ़िएगा। ये काफी ज्यादा मतलब डरावनी पोस्ट है आगे आने वाले टाइम के लिए। इन्होंने कहा है, वी हैड ए वेरी मीनिंगफुल मीटिंग इन द व्हाइट हाउस टुडे, मच वाज लर्नड that could never be understood without conversation under such fire and pressure। इस हिसाब से, फायर और प्रेशर के हिसाब से, इतना गर्मी गर्मा से कभी आज तक बात नहीं हुई थी। It is amazing what comes out through emotion and I have determined that, ने महसूस किया कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है इज नॉट रेडी फॉर पीस, ये शांति के लिए रेडी नहीं है। इफ अमेरिका इज इन्वॉल्व, अगर अमेरिका इन्वॉल्व है तो, बिकॉज ही फील्स आवर इन्वॉल्वमेंट गिव हिम ए बिग एडवांटेज इन नेगोशिएशन, क्योंकि जेलेंस्की को ये लगता है कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जो है वो अमेरिका को बड़ा एडवांटेज चाहता है, दिलाता है, इस वजह से अमेरिका आना चाहता है। मतलब वही वाली बात कि रेयर अर्थ मिनरल वाली, कि अमेरिका चाहता है कि उसे रेयर अर्थ मिनरल मिल जाए, इसलिए वो शांति समझौते में आना चाहता है। लेकिन आई डोंट वांट एडवांटेज, आई वांट पीस, मैं कोई एडवांटेज नहीं चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, ये तो कहा ट्रंप ने। अब अगली लाइन पढ़ो। इन्होंने यहां पर देखो रेड कलर में कर करके लिखा हुआ है, ही डिसरेस्पेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन इट्स चेरिश्ड ओवल ऑफिस। हमारे के द्वारा जो हमने मेजबानी करी थी ओवल ऑफिस में, इनकी मेजबानी करने के बावजूद इन्होंने डिसरेस्पेक्ट दिखाया। He can come back when he is ready for peace। वो दोबारा आ सकते हैं जब उनको शांति चाहिए होगा। अब देखते हैं कैसे शांति मिलती है। खैर, अब इस बात को लेकर के चाहे एलन मस्क हो, चाहे जेडी वेंस हो उपराष्ट्रपति, चाहे ये ट्रम्प, सब लोग और जो भी वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं, मतलब वहाँ के संसद के सब लोग लगातार इस इनके पोस्ट को रीट्वीट कर रहे हैं, कुछ और भी अपने शब्दों से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मतलब अमेरिका पूरा खफा है आज, और कुछ भी हो सकता है। अब खुला सपोर्ट, जैसे कि अभी तो आपने देखा कि यूएन में वोट कर दिया था ट्रंप ने, फिर रसिया के पक्ष में वोटिंग कर दिए थे। 18 लोग यूक्रेन के प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग किए थे, उनमें से एक अमेरिका भी था। अमेरिका ने रूस के पक्ष में वोटिंग कर दिया और यूक्रेन के खिलाफ वोटिंग कर दिया था। इसको लेकर के जेलेंस्की खफा भी हुए थे, लेकिन बाद में रेयर अर्थ मिनरल को लेकर के ये मनवा लिए थे डील। ऐसा लग रहा था कि रेयर अर्थ मिनरल पर डील हो जाएगी, और मुंह से तो हो गया था, फोन से तो हो गया था, लेकिन ये कहा जा रहा था आएंगे तो ये सिग्नेचर भी कर देंगे ओवल ऑफिस में। आए और ये बात से पलट गए और बुरा भला कहने लगे कि अमेरिका बड़ा एडवांटेज चाहता है। इस बात को लेकर के ट्रंप खुद ही कैंसिल कर दिए। ट्रंप ने कहा कि अब हम कोई एडवांटेज नहीं लेंगे, कोई अर्थ मिनरल डील नहीं होगी, लेकिन अब सबक तो सिखा कर ही रहेंगे। तो खैर, मामला बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। आगे जो भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत कुछ होने वाला है। रूस के अभी तक तो केवल यूएन में वोटिंग किया था अमेरिका, अभी तक तो पुतिन की बुराई सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर जब उन्होंने हत्यारा बोला पुतिन को, तो उसी बात पर भड़क गए ट्रंप। अब ये देखना होगा कि क्या सपोर्ट भी करने लगेंगे रसिया का। अगर हम अमेरिका रसिया एक साथ आ गया, तब सोचो क्या हाल होगा यूक्रेन का। अभी तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन का, तब ऐसे चल रहे थे। खैर, बाकी यूरोप देश ये हैं, यूरोपीय देश यूक्रेन के पक्ष में खड़े हुए हैं और सख्ती से खड़े हुए हैं, लेकिन अब देखना होगा आगे क्या बदलाव आता है। जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।